خیر مبارک جی. عید جیسی گزرتی ہے ویسی ہی گزر رہی ہے. رونق والی عید ہے. عید سے پہلے مارکیٹوں میں رونق نہیں تھی. لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید میں نے کہا کہ لوگوں کی قوت خرید ختم ہو چکی ہے, لوگوں نے اس طریقے سے عید کو سیلیبریٹ نہیں کریں گے. لیکن الحمدللہ پھر کل جو ہے وہ یوم سسرال ہو جائے گا. تو اب آج ہم کس طریقے نیشنل یوم سسرال. میری توقعات کے برعکس میں سمجھ رہا تھا کہ یہ عید بالکل ڈل سی ہوگی, اس عید میں وہ رونق اور خوشی نہیں ہوگی. میں سمجھ رہا تھا کہ جنگ کی وجہ سے بھی لوگوں کے ذہنوں کے اوپر دباؤ ہے, تو بہت سے لوگ ان بٹوین لٹکے ہوئے ہیں. بالکل. تو یہ فرق ہے. پاکستان الحمدللہ از ان مچ بیٹر پوزیشن. دیگر ممالک کے اندر اگر دیکھیں تو حالات خراب ہیں, نوز ڈاؤن جا رہے ہیں ممالک, اور ہم جو ہے وہ ہم ٹیک آف کر رہے ہیں. ہم ٹیک آف کر رہے ہیں. دیکھو جو اچھائی ہے وہ اچھائی مانے. السلام علیکم ویورز, آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں نوشین طارق. عید کے اس موقع پر آپ سب کو عید مبارک, اس نیک تمنا کے ساتھ کہ آپ لوگ جہاں بھی ہیں یہ عید آپ کے لیے خوشیاں, رحمتیں اور برکتیں لے کر آئے. ایز یوزول ہم آپ کے لیے جو ہے وہ کرنٹ افیئرز اور ہیپننگز لے کر آتے ہیں, لیکن آج عید کا دن ہے اور آج بھی میرے ساتھ, جیسے کہ آپ پوڈ کاسٹ پہ دیکھتے ہیں حسن ایوب کو, سینئر صحافی تجزیہ کار ہیں, آج وہ عید کے دن بھی آپ کے اور میرے مہمان ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انا بخیر. کیفی حالک حبیبی؟ الحمدللہ الحمدللہ. عید کیسی گزر رہی ہے آپ کی؟ عید مبارک سب سے پہلے تو آپ کو. خیر مبارک جی. عید جیسی گزرتی ہے ویسی ہی گزر رہی ہے. ماشاءاللہ رونق والی عید ہے. عید سے پہلے مارکیٹوں میں رونق نہیں تھی. لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید میں نے کہا کہ لوگوں کی قوت خرید ختم ہو چکی ہے, لوگوں نے اس طریقے سے عید کو سیلیبریٹ نہیں کریں گے. لیکن الحمدللہ یوم عید کے اوپر پھر لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں. پھر لوگ اپنی بچے اپنی منمانیاں کرتے ہیں. اس طرح کی جو پھر کل جو ہے وہ یوم سسرال ہو جائے گا. تو اب آئی ڈونٹ نو ہم کس طریقے نیشنل یوم سسرال, نیشنل یوم سسرال ہو جانا ہے, تو وہ بھی ہو جاتا ہے. تو پھر اب دیکھتے ہیں, لیٹس سی جی کیا بنتا ہے. لیکن میری توقعات کے برعکس میں سمجھ رہا تھا کہ یہ عید بالکل ڈل سی ہوگی, اس عید میں وہ رونق اور خوشی نہیں ہوگی. میں سمجھ رہا تھا کہ جنگ کی وجہ سے بھی لوگوں کے ذہنوں کے اوپر دباؤ ہے, لیکن ویسا نہیں ہے. میں غلط ثابت ہوں. لوگ بڑے پرجوش بھی ہیں, خوش بھی ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں. اچھا حسن, وہ تو ٹھیک ہے کہ عید ہمیں جو ہے وہ رمضان المبارک کے اتنے بابرکت مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تہوار ملتا ہے, خوشیاں بھی ہونی چاہیے. لیکن میں نے پرسنلی اس عید پہ یہ محسوس کیا ہے کہ وہ والی چیز نہیں آتی نا, ہر طرف تھوڑا سا ایک ذہن پہ دباؤ ہے. ہمارے پڑوس کیا دباؤ ہے جی؟ ہم لوگوں نے اوپن ایئرز میں جو ہے عید کی نمازیں ادا کی ہیں. اب یو اے ای میں دیکھ لیں, وہ لوگ مسجدوں سے باہر نہیں نکلے. وہی تو تمام کی تمام انہوں نے جتنی عیدیں جو نمازیں پڑھی ہیں وہ مساجد کے اندر, مطلب وہ اوپن ایئر میں وہ عید کی نماز نہیں پڑھ سکے. تو ہم تو الحمدللہ ہمارے یہاں تو عید ہے, وہاں پر وہ عید نہیں ہے ریئلسٹکلی. اچھا, ایک ایم پی اے صاحب ہیں, وہ پھنسے ہوئے ہیں, ان سے میری بات ہو رہی تھی رات کو. تو خیر ان کی تو عید ہو چکی ہے نا. تو میں نے پوچھا, میں نے کہا کیا ہے؟ کہتے ہیں بس کوئی نہیں, کوکے کے رکھا ہوا ہے. وہ وہاں پر پھنس گیا بیچارہ. وہ ایم پی اے صاحب تو وہ بڑے پریشان تھے. تو میں نے ان سے پوچھا, کہتے ہیں ابھی مزید مجھے 10-15 دن مزید لگیں گے. تو میں نے کہا یہ لوگ تو انخلا ہو رہا تھا, تو آپ آ جاتے پاکستان. کہتے ہیں وہ میرا جو ویزا میں نے اپنا پرانا کینسل کرا دیا, تو میں نے ایک اور نیا ویزا اپلائی کیا تھا, گولڈن ویزا, تو اس لیے اب میں ان بٹوین لٹک چکا ہوں. تو بہت سے لوگ ان بٹوین لٹکے ہوئے ہیں. بالکل. تو یہ فرق ہے. پاکستان الحمدللہ از ان مچ بیٹر پوزیشن. پاکستان کے اندر جو حالات ہیں وہ پہلے کے مقابلے میں بہتر ہو رہی ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ. دیکھیں عید کا بڑا دن ہے. آپ سچ بولیں کہ ہمارے ہاں دیگر ممالک کے اندر اگر دیکھیں تو حالات خراب ہیں, نوز ڈاؤن جا رہے ہیں ممالک, اور ہم جو ہے وہ ہم ٹیک آف کر رہے ہیں. ہم ٹیک آف کر رہے ہیں. دیکھو جو اچھائی ہے وہ اچھائی مانے. بالکل. پاکستان ایک محفوظ اس وقت ملک ہے اور اس کا ہم اللہ سے شکر بھی ادا کرتے ہیں. لیکن اچھا حسن, یہ جس طرح سے ہمارے مسلمان بہن بھائی اس وقت تکلیف میں ہیں, خاص کر ایران میں تو اتنی شہادتیں ہوئی ہیں کہ ان بیچاروں کے لیے یہ عید تو کیا ہی عید ہوگی. اس کے علاوہ ہم آج یہ تو ڈسکس نہیں کریں گے ناظرین سے کہ کیا ہونے والا ہے یا کیا ہو رہا ہے, ہمارے بہت سے ناظرین کو پتہ ہے, لیکن ہم یہ ضرور ڈسکس کریں گے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے, کیا چیزیں ہیں. جو ایران کی سچویشن اس وقت ایمرج ہوئی ہے حسن, دنیا اس کو نا بہت ڈفرینٹ اینگلز, ہر کوئی کہہ رہا ہے تھرڈ ورلڈ وار ہونے جا رہی ہے, کوئی کہہ رہا ہے یہاں سے مسلمانوں اور جو ہے وہ یہودیوں کا کوئی فیصلہ کن قسم کا مرحلہ اسٹارٹ ہوگا. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ واقعی ایک ویکنگ کال ہے مسلمانوں کے لیے؟ دیکھیں اس وقت گو کہ مڈل ایسٹرن ممالک کے اوپر جس طریقے سے
एग्रेशन किया ईरान ने, जो रियलिस्टिक बात है कि उन्होंने नाम लिया कि हम अमरीकी तनसीबात या अहदाफ को हम टारगेट कर रहे हैं, लेकिन टेरिटरी तो मुस्लिम ममालिक की थी ना, खलीजी ममालिक की। उन्होंने हमला किया, लेकिन हमले के बावजूद आज भी इन ममालिक की और इन ममालिक में रहने वाले अवाम की तमाम हमदर्दियाँ, गवर्नमेंट की भी और अवाम की हमदर्दियाँ ईरान के साथ है। क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम मुल्क है। एंड और क्या वजह हो सकती है? ये तो है ही है ना। और ये कि उसके साथ ज्यादती हुई है? जी नहीं, वजह ये है कि इस वक्त इन ममालिक को मालूम है कि अगर एक ही मुल्क है जो बैलेंस करता है मिडिल ईस्ट के अंदर इसराइल को, और वो ईरान है। अगर ईरान गिर गया तो इसके बाद कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो बैलेंस कर सके, फिर टोटल बदमाशी हो जाएगी इसराइल की। और इसराइली जो तसल्लुत है वो नहीं चाहते कि ये कायम हो, तो इस वजह से ये ममालिक और इनकी आवाम की मुकम्मल हमदर्दियां जो है वो ईरान की के साथ हैं कि ये दुआ गो हैं ये ममालिक कि ईरान खड़ा रहे, गिरे ना। और ईरान खुदा ना खास्ता अगर गिर गया तो फिर कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो खड़ा हो सके। लेकिन अब ये देखें कि लेबनान की तरफ से भी जो अटैक्स हो रहे हैं इसराइल के ऊपर, इसराइल की ज्यादा तवज्जो जो है ना उस तरफ भी हो रही है। ईरान में भी वो टारगेट्स अचीव कर रहे हैं, लेकिन उनको भी दो तरफ से जो है मज़ामत का सामना करना पड़ रहा है, जो कि ठीक है जी। फिर अब इस तरह से ही जो ईरान की प्रॉक्सीज थी जो ये समझ रहे थे कि वो डेड हो चुकी है, वो डेड नहीं, वो लाइव है। अच्छा हसन, जैसे कि मैंने बोला ना कि हमारे बहुत से आम व्यूवर्स जो है ना वो इस जंग को बड़ी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी तस्दीक करने की कोशिश करते हैं कि चूंकि इसराइल का ग्रेटर इसराइल का मंसूबा है तो इसलिए वो बहुत से मिडिल ईस्ट कंट्रीज को जम कर लेगा और फिर ये यहूद और मुस्लिम की एक जंग होगी। अच्छा, ये सवाल बड़ा यहाँ पे होता है कि हम मिडिल ईस्ट में नहीं आते, पाकिस्तान इज नॉट इन मिडिल ईस्ट, लेकिन बहुत से लोग इसकी तज्जिया करते हैं। आपने देखा होगा डॉक्टर स्टार की भी वीडियोस चल रही हैं कि पाकिस्तान स्टाइल के साथ इन फ्यूचर इसका काउंटर हो सकता है और पाकिस्तान ही वो मुल्क है जो स्टाइल को काउंटर करने के लिए बना है। यहाँ तक भी लोग दलीलें देते हैं। आप इसको कैसे देखते हैं कि ये चीज एक ना एक फार फ्यूचर में है? एक ना एक दिन तो पाकिस्तान को इसराइल का आमना सामना तो होना है जी। अच्छा, मतलब एक्चुअल आमने सामने आ जाएंगे, जैसे कि भाई हाँ तुम, अब तो इंडायरेक्ट होता है ना काम, अब तो वो वाई इंडिया आता है। हालांकि हम उनकी टेरिटरी, हम उनका इंटरेस्ट नहीं है, मतलब उसमें मिडिल ईस्ट को एक्सपेंड करके ग्रेटर इसराइल बना रहे ना। किसने कहा है? बलूचिस्तान में उनका पूरा भरपूर इंटरेस्ट है। ओके, बलूचिस्तान के अंदर वो पूरी उनकी तवज्जो मरकूज है। इसराइल जो है वो अफगानिस्तान के अंदर बैठा हुआ है, उनकी एनजीओज बैठी हुई हैं, वो वहाँ पर क्या कर रही हैं? वहाँ पर वो पैसे दे रही हैं जी, वहाँ पर वो बड़े अरसे से ये काम कर रही है। इवन पिछले रजीम में भी कर रहे थे, इस रजीम में भी कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? उनका इंटरेस्ट है बलूचिस्तान के अंदर, और अफगानिस्तान के साथ जो बलूचिस्तान का बॉर्डर लगता है वो वहीं पर उनका इंटरेस्ट है। वो डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं पाकिस्तान को। पाकिस्तान उनकी आंख में खटकता है, लेकिन ये एक ना एक दिन पाकिस्तान का और इसराइल का आमना सामना होगा, और जिस दिन होगा इंशाल्लाह ताला फिर जो अल्लाह को मंजूर होगा, इसराइल को मिला पता जाएगा ना पाकिस्तान ईरान है, ना पाकिस्तान इराक है, ना पाकिस्तान कोई और मुल्क है, पाकिस्तान है। दुनिया की वाहिद एटमी इस्लामी एटमी न्यूक्लियर पावर है जिसके पास हाइपरसोनिक सुपरसोनिक जो है वो मिसाइल्स हैं, और जो मिसाइल्स ऐसे हैं कि जिसका मैच करना जो है वो मुश्किल ही नामुमकिन है। ये जो आयरन डोम शोम है ना वो नजर भी नहीं आएंगे किधर जाने हैं। अच्छा हसन, इस हवाले से एक और सवाल भी है। जब पिछली भी जंग हुई पाकिस्तान और भारत की भी और इसराइल और ईरान का भी वो हुआ, तब भी देखने में ये आया, लोग ये बातें कर रहे थे कि अब नए वर्ल्ड ऑर्डर्स बनेंगे, यानी नई ताकतें बनेंगी, नई ग्रुप बंदी होगी। और पाकिस्तान पता है इस वक्त इतनी इंटरेस्टिंग पोजीशन में है कि चाइना की तो हम दरीना दोस्त हैं ही हैं, लेकिन हमारे के साथ भी हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी अच्छी रखी हुई कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी पे गामजन है। अगर नए वर्ल्ड ऑर्डर बनते हैं तो हम किस तरफ होंगे? देखो, ममालिक के दरमियान में जो है ना ताल्लुकात वो बामी मुफादात पर होते हैं, कोई किसी का सगा नहीं होता। आप देख लें कि इंडिया जो है वो नरेंद्र मोदी ईरान पर हमले से एक दिन पहले बैठा हुआ था इसराइली पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन क्या उसके बावजूद ईरान ने उनके 2 ऑयल कार्गोज गुजरने नहीं दिए? सबसे पहले इंडियन गुजरने दी ना स्टेट ऑफ हॉर्मस से। क्यों? वजह यह है कि ईरान को मालूम है कि वो
बाकी ममालिक के साथ जंग नहीं लड़ सकता क्योंकि उनके ताल्लुकात अच्छे इजराइल के साथ हैं। जब पाकिस्तान की और इंडिया की जंग थी 6-7 मई को हुआ, तो 8 तारीख को या 9 तारीख को अब्बास इराकची साहब हैदराबाद हाउस दिल्ली में बैठकर इंडिया के साथ MOU साइन कर रहे थे। तो ममालिक के दरमियान क्या उस वक्त ईरान ने ये सोचा कि पाकिस्तान हमारा जो है वो ब्रदर इस्लामी मुल्क है तो हम इंडिया के साथ नहीं करेंगे, साइन करेंगे। ममालिक के दरमियान ताल्लुकात जज्बात पर नहीं होते, वो ठीक किया उन्होंने अपने फायदे को देखना है। तो हमने भी अपने फायदे को देखना है, हम भी अपने फायदे को देखेंगे। तो जो भी वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा, जो नया होगा, उसमें पाकिस्तान का जहां से मुफाद होगा पाकिस्तान उस तरफ जाएगा। लॉयल्टीज अपने मुफाद के साथ होती हैं, किसी मुल्क के साथ नहीं, किसी मुल्क के साथ नहीं होती। अच्छा, फिर सऊदी अरब डिफरेंट केस है। अच्छा, सऊदीया को आप डिफरेंट इस तरह से ट्रीट करते हैं बिकॉज ऑफ 2 होली मॉस्क जी, इसके अलावा कोई वजह नहीं। ओके अच्छा, हसन, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इस वक्त जो है वो एक तरफ पाकिस्तान में थोड़ा सा सियासी टर्मोइल भी है अपोजिशन के हवाले से, दूसरी तरफ जो है वो हमारा अफगानिस्तान के साथ भी चल रहा है। भारत से हमें खटका रहता है ये मई के बाद कि वो फिर कोई शरारत ना कर दे। देखिए जी, ईद का बड़ा दिन है। मैं पहली बात तो ये करना चाहूँगा कि एक आप बिल्कुल इत्मीनान रखें, व्यूअर्स हैं आपके और हमारे दोनों के बड़े लॉयल व्यूअर्स हैं, तो उनको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एक बात आप बिल्कुल तसल्ली रखिएगा कि अडयाला का चांसलर जो है वो अपनी मुद्दत पूरी करेगा। और अभी तक इतला नहीं मिल सकी कि खान साहब ने ईद की नमाज अदा की है या नहीं की। मैंने पता कराने की कोशिश की है तो मुझे तो नहीं मालूम हो सका कि उन्होंने नमाज पढ़ी है। पढ़ी होगी, जेल में जाहिर है। वो कैदियों के साथ मिक्सअप ही नहीं होते। पिछले साल भी मैंने नहीं सुना कि नमाज पढ़ी है। अच्छा, आपने सुने? नहीं, मेरे तक तो ऐसी कोई इत्तला तस्वीर नहीं आई ना, तो मेरे तक भी इत्तलात नहीं आई। इस वक्त मैं कोशिश करूँगा इत्तलात ले लूँ। अच्छा, क्या कभी ऐसा भी हो सकता है हसन के खान साहब के लिए जो आपका वो है वो कोई नरम गोशा आपके दिल में पैदा हो जाए? जैसे हमारे व्यूवर्स का भी ये सवाल होगा, मेरा भी, कोई नरम गोशा आप उनके लिए पैदा हो जाएगा, वो भी साबिक वजीर आज़म पाकिस्तान के, लेकिन इस वक्त नाहल है ना। अच्छा, वो साबिक वज़ीर आज़म है लेकिन इस वक्त कौंसलर तक नहीं बन सकते। वो साबिक वज़ीर आज़म है लेकिन उनकी तरफ से यानी बाय डिज़ाइन उनकी जमात की तरफ से 9 मई हुआ है। मेरी एनिमिटी उनसे बड़ी है 9 मई के बाद। तो ये ऐसे ऐसे चीज़ें बिल्डअप होती है ना, और होता रहता है जी। कभी मुझे बड़ा फेवरेट भी था, मुझे खान साहब बड़े पसंद थे आपको। जिसको आप जितना आइडियलाइज करते हो, जितना पसंद करते हो ना, जब वो आपकी नज़रों में गिरता है तो फिर वो बहुत नीचे गिर जाता है। ये बात है। अच्छा, मतलब क्या आपको लगता है कि खान साहब भी अगर, बड़ी तवक्कुआत थी इमरान खान साहब से, मैं इनको बड़ा समझता था कि बड़े अच्छे स्टेट आदमी हैं, सच्चे आदमी हैं, तो झूठ एक्सपोज होने शुरू पड़े। बड़े झूठ मैंने उनके देखे, मैं ये हर फिर उनका झूठ विजिबल होना शुरू पड़ा। तो खान साहब बहुत झूठ बोलते हैं। अच्छा। और मैं उनको मुकम्मल सच्चा आदमी जो है वो समझता था, इस वजह से मेरी नजरों से गिरे हैं। आपने क्यों किसी सियासतदान को सच्चा समझा? वैसे तो ये गलती वो रवायती सियासतदान थे नहीं ना, वो रवायती सियासतदान थे नहीं। उनकी गुफ्तगू बातें तो वो सारी बहुत अच्छी की उन्होंने। जितना अरसा वो इक़्तिदार में नहीं आए वो जबरदस्त बातें करते रहे। अच्छा, लेकिन इक़्तिदार में आकर वो इतने बैडली एक्सपोज हुए हैं। लेकिन मैं आज भी एक बात कर दूं, आप कह दीजिए तारीफ करूं, तो तारीफ ये है कि जितने नालायक वज़ीर आज़म थे इमरान खान साहब, उतने ही जबरदस्त और गजब के अपोजिशन लीडर हैं इमरान खान साहब। अच्छा, उनसे अच्छा तगड़ा अपोजिशन लीडर मैंने नहीं देखा पाकिस्तान में। उन्होंने जब भी वो पोजीशन में थे, स्पेशली जब वो लीडर बने हैं, उन्होंने हुकूमत को जो है वक्त डाल दिया वो हुकूमत को उन्होंने हिलने नहीं दिया। तो इमरान खान साहब की जो बात तारीफ मानने वाली है, हाँ, लेकिन उनकी ये बात जो कि मैं समझता था कि वो बहुत सच्चे आदमी है, यकीन करें मुझे मेरा दिल टूटा इस वजह से कि इमरान खान साहब बहुत झूठे हैं। अच्छा, वैसे पाकिस्तान के फ्यूचर को आप कैसे देखते हैं? कि मैं ज्योतिष थोड़ी हूँ, नहीं, फिर भी आपसे आज एनालिसिस ले रहे हैं। तो अक़वात मेरी अच्छी हैं जी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को जो है दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे। पाकिस्तान के जो मेरी तरह मेरे व्यूवर्स भी सुनते ही आ रहे 70 सालों से कि 72 सालों से कि पाकिस्तान नाजुक मोड़ से ही गुजर रही है। नाजुक मोड़ हमारी जिंदगियों से, हमारी जिंदगी में गुजर जाएगा कि नहीं? उम्मीद तो है जी, अल्लाह करेगा कि पाकिस्तान के जो जिस फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट के अंदर बैठा हुआ है इससे निकल जाए। लेकिन मुझे याद है कि गुलाम हसन खान साहब जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, और उस वक्त पाकिस्तान किसी यूरोपियन मुल्क को जो है वो दे रहा था कर्ज। तो इस ज़माने में ये नॉट वेरी 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 लॉन्ग अगो, ये 88-90 की बात है, या शायद इससे पुरानी बात है। उस ज़माने की बात है कि पाकिस्तान की ये पोजीशन थी फाइनेंशियली। तो हम इतने सालों में इतने जो है वो पस्ती में गए हैं। तो हर जवाल के बाद फिर कभी उरूज भी आता है। दिन एक जैसे नहीं रहते। कुरान में अल्लाह ताला कहता है कि मैं लोगों के दरमियान दिनों को अदल बदल करता हूँ। हाँ, अगर
अच्छे दिन नहीं रहे, बुरे दिन अब इतने से गुजर रहे हैं, तो जी बुरे दिन भी नहीं रहेंगे, इंशाल्लाह अच्छे दिन भी आएंगे। अच्छे दिन भी आएंगे। ठीक है, ईद का दिन है, अच्छी बातें अच्छी बातें कह रहे हैं। चलिए रावी ने अच्छी बातें। देखिए जी, मैंने ये बताऊं कि ईद की नमाज जो है वो फैमिली के साथ जाकर पढ़ता हूँ। मैं अपनी मिसेस को, बेटी को, मदर को, तमाम लोगों को लेके जाता हूँ। अच्छा जी, गुड, ये तो अच्छी बात है। आप गई थी? मैं भी गई थी। मैं भी अपने हस्बैंड के साथ ईद की नमाज पढ़ने जाती हूँ, और मैंने भी कहा कि ईद तो खरीद। आपके हस्बैंड के साथ पहली ईद है, कैसे जाती हैं? मतलब अब जाना तो शुरू कर दूंगी ना, पहले पेरेंट्स के साथ जाती थी और कभी तक नहीं जाती थी, लेकिन ये है कि अब से तो फैमिली वाला वो है। अच्छा हसन, ये बताएं कि इस वक्त जो है हम जब ईद शो कर रहे हैं तो हमने यहाँ की बातें भी कर ली, खान साहब की बात भी कर ली, जंग की बात भी कर ली। अब थोड़ा सा मैं इस चीज़ पे आऊँगी कि अगर थोड़ी सी आपकी पर्सनल बातें की जाएं, तो अगर आप सहाफ़ी ना होते तो क्या होते? सहाफ़ी ना होता तो क्या होता? हाँ। मैं जाहिर बात है इंजीनियर होता। मैं मोबाइल इंटरनेट कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की हुई, तो इंजीनियर होता। अच्छा जी, सहाफ़ी ना होते तो वो होते हैं। जी। अब वैसे ऐसी कौन सी अभी आपकी दरीना ख्वाहिश है? वैसे तो आप माशाल्लाह एक सक्सेसफुल और प्रिविलेज इंसान है, फिर भी कोई ऐसी ख्वाहिश जो भी आपकी रहती है जो पूरी हो? बड़ी ख्वाहिशात हैं जी। कोई ऐसी बड़ी? अभी पहली ख्वाहिश तो हज पे जा रहा हूँ इंशाल्लाह। ओके। हज पे जाना चाहता हूँ। ये चाहता हूँ कि माँ की मज़ीद खिदमत करूँ, ख्वाहिशात हैं। बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत करूँ, उनकी अच्छी शादियाँ करूँ, ये ख्वाहिशात हैं। इंसानी ख्वाहिशात पर कोई फुल स्टॉप नहीं लगा सकता। इंसान खूब से खूब तर की तलाश में रहता है। अच्छा। अपने लिए कुछ चाहता हूँ, अपने लिए भी चाहता हूँ, अपने लिए भी चाहता हूँ। देखिए, मैं अपने लिए चाहता हूँ ये हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी माँ की खिदमत कर सकूँ, और जितना उनके साथ अटैच होकर अपनी आखिर संवार सकूं, उतना ही मेरे ख्याल से वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एक ना एक दिन किसी न किसी जाना होता है। तो वो इस लिहाज से ये है कि मेरे वालिद साहब दुनिया में नहीं रहे, तो माँ की भी ज़्यादा कदर जो है वालिद के जाने के बाद शुरू की है। अच्छा, ये वैसे मैंने सुना था कि कभी आप पॉलिटिक्स में भी आना चाहते थे, लेकिन एक ज़माने में आना चाह रहा था जी। अच्छा, अब नहीं आना? एक ज़माने में आना चाह रहा था, लेकिन मैं बड़ा ही, देखिए ना, जब आपकी उम्र कम होती है ना, आपकी फैसले जो हैं वो सोच पर नहीं, जज्बात पर मबनी होते हैं। वो फैसला मेरे जज्बात पर मबनी था, सोच पर मबनी नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह सहाफ़त बेहतरीन पेशा है। आप देखें, आप हर टाइम के साथ जो अपने आप को तब्दील करता है, जो दौरे हाजिर के तकाज़ों के साथ खुद को जो है ब्लेंड करता है, वही कामयाब होता है। तो मैंने थोड़ा सा लेट से ही लेकिन डिजिटल की तरफ आ गया हूँ। तो वो डिजिटल जो की तरफ आना, और फिर उसके बाद ट्विटर के ऊपर एक्टिव होना, और फिर किसी के लिए नाइटमेयर होना, तो फिर रावी, फिर दुनिया में पाकिस्तान में एक होना, तो ये भी बड़ी बात है ना। वैसे कभी ये भी हो सकता है ना कि आप जिनके नाइटमेयर हैं उनके वो हो जाएं आने वाले वक्त में, क्या वक्त का क्या पता चलता है? नहीं, पहले उनका हमायती था ना, तो अब उनके लिए नाइटमेयर बनाऊं। दोबारा से हमायती बनने की कोई चांस? मुश्किल लगता है। मुश्किल। हाँ, इस्लाह कर ले तो व्हाई नॉट, अच्छे काम करें तो व्हाई नॉट। मेरी जाती दुश्मनी थोड़ी है, मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं है। देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ रिपेंटेंस इज ड्रिवन फ्रॉम इस्लाम। माफी मांगकर और अपनी इस्लाह के लिए जो बंदा बड़े आगे, उसके साथ क्यों कोई, अल्लाह अगर माफ कर सकता है तो मैं को अल्लाह से ज्यादा बड़ी चीज हूँ? अल्लाह माफी दे, खुदा न खास्ता, मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ। तो मैं तो बिल्कुल वही जो सिफ्त है, जो एकामात इलाही हैं, उसके ऊपर अमल करूंगा, बिल्कुल क्यों नहीं करूंगा। अच्छा चलें हसन, जो है वो ईद का मौका है, और मैं चाहूंगी लास्ट में रैप अप करें आप ये किसी अच्छे से पैगाम से जो आप व्यूअर्स को देना चाहते हैं। अच्छा सा पैगाम ये था जनाब के आप खाएं पिए, आज का दिन है, नौशीन जैसी कंजूसी मत करें। यहाँ पर मिठाई का एक जरा प्लेट तक नहीं रखवा सकेंगे, और ये इन्होंने मुझसे जो है पूरा इन्होंने ईद शो जो है पूरा रिकॉर्ड करवा दिया। तो कंजूसी अच्छी आदत नहीं है जी, और कंजूसी ना करें। अब बच्चों को मनमानी करने दें, और छोटे बहन भाई अगर आपके हैं तो उनके साथ प्यार करें और उनको खुश रखें। आज खुद भी खुश रहें, खुशियाँ बांटें, और अगर वालिदैन किसी के हयात हैं तो उनकी खिदमत करें, उनसे दुआएं जो है वो लें। थैंक यू वेरी मच हसन, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा पैगाम था हसन की तरफ से भी, और मैं भी ये कहना चाहूँगी जनाब कि खुशियों का दिन है, आप खुशियाँ मनाएं भी, खुशियाँ बांटें भी, और ये रहमतों और बरकतों का दिन है, अल्लाह ताला की तरफ से त्यौहार है, और अपनी दुआओं में हमें भी याद रखें। और तमाम मुसलमान जो इस वक्त दुनिया में ईद की खुशी नहीं मना रहे, उनके भी दुआओं में याद रखें कि उनके लिए भी ईद की खुशियाँ दोबारा से बहाल हों। अल्लाह हाफ़िज़।